اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک سمپل آئیڈیا سیلنگ بکس آن لائن ٹرنڈ انٹو اے $2 trillion ایمپائر جس نے دنیا کو بدل دیا. ہم بات کر رہے ہیں Amazon کی, Amazon.com کی. Amazon has a lot of traction online. They've got deep pockets to buy just. اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے Amazon کو. Amazon ایک ایسی کمپنی جس کی شروعات ایک گیراج سے ہوئی اور آج وہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے. اب ہم جانیں گے کہ سب کچھ کیسے ہوا اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی شروعات کریں, آغاز کریں, مجھے نیچے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ نے کبھی Amazon سے کوئی شاپنگ کی ہے اور آپ کا کیسا فیڈ بیک رہا. 1994 میں جب انٹرنیٹ ٹیک آف کر رہا تھا تو جیف بیزوس, ایک وال اسٹریٹ کا بندہ, اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا کہ میں آن لائن بک سیل کروں گا, لیکن اس کا ایک لانگ ٹرم ویژن تھا. ہی جسٹ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو اسٹک ٹو بکس. اس نے کہا کہ بک سے شروع کروں گا, میں ایکسپلور کروں گا انٹرنیٹ کو, میں ایکسپلور کرتا ہوں کہ آن لائن بزنس کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں. لیکن اس کے ذہن میں اس کی منزل بالکل کلیئر تھی, اس کی جو اینڈ گیم ہے وہ بالکل واضح تھی کہ اس نے الٹیمیٹلی کیا کمپنی بنانی تھی یا کیا ویب سائٹ بنانی تھی. جیف بیزوس وانٹڈ ٹو بلڈ دی ایوری تھنگ اسٹور, کہ ایک ایسی جگہ, ایک ایسا آن لائن پلیٹ فارم, ایک ایسا آن لائن ویب سائٹ, ایک ایسے آن لائن ای کامرس پلیٹ فارم جہاں پر سب کچھ ملے, جہاں پر کسٹمر آئے اس کو ایک کلک کے اوپر سب کچھ مل جائے اور گھر بیٹھے بیٹھے اس کو چیزیں مل جائیں, اس کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سو یہ تھا اس کا ویژن اور یہ 1994 میں 1994 میں شروع ہوا. اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں ویورز کہ یہ وہ وقت ہے 1994 جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہم آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں. لوگوں نے کئی بار اس کا مذاق اڑایا کہ آن لائن تم بکس بیچ رہے ہو, کون خریدے گا آن لائن یہ بکس, اور تم کیا کرنا چاہ رہے ہو کہ سب کچھ آن لائن بیچنا چاہ رہے ہو. سو کافی تنقید کی لوگوں نے اس کو کافی تنقید کا نشانہ بننا پڑا. لاٹ آف کرٹکس ور دیئر. اوبویسلی آپ جب کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہو تو ہمیشہ آپ کو کرٹکس ملیں گے, آپ کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جیف بیزوس واز نو ڈفرنٹ, نائدر واز Amazon. لیکن جیف بیزوس نے ایز اے لیڈر, ایز اے ویژن ایک چیز دیکھی کہ یار انٹرنیٹ کا فیوچر, انٹرنیٹ کا پوٹینشیل ہے, اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ انٹرنیٹ دنیا کو تبدیل کرنے جا رہی ہے. لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی اور وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے خواب کو بلڈ کرنا شروع کر دیا, اس کا آغاز کر دیا. اس نے اپنی جاب چھوڑی, سیٹل موو کیا اور اپنے گیراج سے اس نے Amazon کو سٹارٹ کیا. جو Amazon کی پہلی ویب سائٹ تھی وہ بالکل ہی بیسک تھی, نہ اتنی انٹیوٹیو تھی اور بالکل ہی ایک سمپل قسم کا انٹرفیس تھا اس کا, لوگوں کو پسند نہیں آئی, لیکن وہ شروعات تھی. لیکن الٹیمیٹلی یہ ورک کیا. آہستہ آہستہ جیف بیزوس کو Amazon کے تھرو آرڈرز ملنا شروع ہو گئے, اس کی بکس بکنا شروع ہو گئی, اور Amazon نے سلولی جب دیکھا کہ لوگ بکس خرید رہے ہیں, دے گاٹ ٹریکشن. ٹریکشن ہوتا ہے کہ جب آپ کے پروڈکٹ کی مارکیٹ پروڈکٹ فٹ ہوتی ہے, لوگ اس کو بائی کرتے ہیں, خریدنا شروع ہوتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کرتے ہیں ان کیس آف این ایپ. سو اس نے دیکھا کہ ہمارے ٹریکشن مل رہی ہے, کسٹمرز ہماری ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں, بائنگ کر رہے ہیں, بکس خرید رہے ہیں, شاپنگ کی جا رہی ہے. پھر انہوں نے کیا دے اسٹارٹیڈ ٹو ایکسپینڈ, دے اسٹارٹیڈ موونگ بیونڈ بکس, جو جیف بیزوس کا ویژن تھا. انہوں نے CDs, DVDs, موویز, الیکٹرانکس, آہستہ سب کچھ انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو Amazon کے اوپر آپ کو آلموسٹ ہر چیز مل جائے. دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو وہاں موجود نہ ہو. یو کین بائی اینی تھنگ فرام Amazon. لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سفر کے دوران Amazon نے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس کا سامنا کرنا پڑا, اور یہاں تک کہ until and unless the fourth quarter of 2001, یعنی کہ Amazon کے بننے کے 7 سال بعد Amazon پہلی بار پروفیٹیبل ہوا تھا. یعنی کہ اس نے 7 سال سے پروفٹ ہی نہیں کمایا تھا, 7 years لگے تھے, 7 سال لگے تھے. It took the company 7 years to make the first profit. So یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ persistence کتنی ضروری ہے, consistency کتنی ضروری ہے, اور ایک firm belief in your vision کہ یار کبھی نہ کبھی تو ہم ایکسل کریں, کبھی نہ کبھی تو ہم پروفیٹیبل ہوں گے, کبھی نہ کبھی تو ہم بڑے ہوں گے. سو یہ ایک ویژن اور بلیف تھا جیف بیزوس کا کہ 2001 میں 7 سال بعد جا کر وہ پہلی بار پروفیٹیبل ہوئے. یہاں پر مجھے ویورز آپ بتائیں کہ آپ نے Amazon سے اپنی پہلی چیز کب خریدی, اور اگر نہیں خریدی تو آپ کب خریدنے جا رہے ہیں. سو Amazon پیسے کیسے کماتا ہے, Amazon کا بزنس ماڈل کیا ہے, یہ $2 trillion کی کمپنی کیسے بن گئی. دیکھیں, آپ کو سب سے پہلے جاننا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں یا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اپنے پیسے کمانے کے اوپر, بزنس ماڈل کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی میں پیسہ لگا رہا ہوں لیکن میں پیسہ بناؤں گا کیسے, پیسہ کماؤں گا کیسے. سو Amazon کا جو بزنس ماڈل ہے وہ کافی ڈفرینٹ اور یونیک ہے, جو کہ شاید آپ جان کے تھوڑا سا حیران بھی ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ Amazon کا میجورٹی آف دا ریونیو, جتنا وہ پیسہ کماتے ہیں, اس کا جو میجورٹی چنک ہے, مور دین 55 to 60% ایسٹیمیٹڈ ہے, وہ Amazon تھرڈ پارٹی سیلر سے کماتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ Amazon کمپنیز کو چارج کرتا ہے کہ وہ اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ Amazon پر دکھائیں اور اس کو مارکیٹ کریں اور اس کو سیل کریں, اور ان ریٹرن Amazon جو ہے وہ کٹ لیتا ہے ایوری سیل کا. سو یہ Amazon کا ون آف دا مین بزنس ماڈلز ہے. اس کا جو دوسرا طریقہ ہے جہاں سے Amazon پیسے کماتا ہے وہ ہے Amazon Prime. Amazon Prime پہ اس ٹائم Amazon کے پاس 200 ملین پلس ممبرز ہیں جو کہ اس کو اینول سبسکرپشنز دیتے ہیں, ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹس لیتے ہیں, اس سے اسٹریمنگ سروسز حاصل کرتے ہیں, اور کئی اور سہولیات جو Amazon دیتا ہے وہ ان پرائم ممبرز کو ملتی ہے. اور یہ جو بزنس ونگ Amazon کا Amazon Prime, یہ
तकरीबन साल का उनको $40 अरब देता है, $40 बिलियन पर ईयर इससे कमाते हैं वो। बट यहाँ पर Amazon के पास एक बड़ी अच्छी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि वो लोगों को खाली कस्टमर नहीं बनाता, वो इनको अपने इकोसिस्टम के अंदर लॉक कर देता है। वंस यू बिकम एन Amazon प्राइम मेंबर या वंस यू स्टार्ट बाइंग फ्रॉम Amazon, आप कहीं और नहीं जाते। सो Amazon ने इतनी कन्वीनियंस दी है कस्टमर्स को, इतनी उन्होंने उसको लॉयल्टी के थ्रू अट्रैक्ट किया है कि कस्टमर कहीं और मूव नहीं करता, ना किसी कंप्यूटर के पास जाता है, ना Amazon के बाहर जाने का वो सोचता भी है। सो आपने कभी प्राइम यूज किया है? आर यू एन Amazon प्राइम मेंबर? ये मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद जो Amazon है वो Amazon वेब सर्विसेज यानी कि AWS के थ्रू कमाता है। नाउ दिस इज द रियल मनी बकेट। यहाँ पर जो है Amazon के प्रॉफिट जो वो कई ज्यादा हो जाते हैं। सो Amazon प्रोडक्ट सेल करने के अलावा ये क्लाउड स्पेस भी सेल करता है, मतलब कि सर्वर सेल करता है, क्लाउड स्पेस सेल करता है, जहाँ अपनी होस्टिंग कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज ले सकते हैं वहाँ पर। सो Amazon में बड़ी बड़ी कंपनीज जो बड़ी बड़ी ऐप्स अब यूज़ करते हैं, जो बड़ी वेबसाइट्स अब विजिट करते हैं, जैसे कि Netflix, Zoom, ये सब वेबसाइट, ये सब एप्लीकेशंस Amazon वेब सर्विसेज यूज़ करके अपने आप को ऊपर अपलोड करते हैं, क्लाउड पर मौजूद होते हैं ये लोग। सो Amazon वेब सर्विसेज इस टाइम इवन नासा भी यूज़ कर रहा है, और Amazon वेब सर्विसेज Amazon के लिए पर ईयर $90 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर Amazon आज सब कुछ छोड़ दे, अपना ई कॉमर्स स्टोर भी छोड़ दे और खाली Amazon वेब सर्विसेज ही चलाए, सो इट विल स्टिल बी a multi-billion dollar company. So AWS जो है, Amazon Web Services जो है, ये Amazon के revenue streams का एक बैकबोन है। उसके बाद Amazon पैसे कमाता है एड्स के थ्रू। आप Amazon पे कोई चीज़ सर्च करते हो, आपको टॉप पर एड्स नजर आते हैं, पहले फीचर प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो लोग जिनके लिए पे करते हैं टू गेट देमसेल्फ फीचर्ड ऑन द टॉप, ताकि आपकी नज़र सबसे पहले उन पे पड़े। ऑब्वियसली एड्स के थ्रू Amazon बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि Amazon ने लास्ट ईयर एड्स के थ्रू $14.6 बिलियन कमाए थे, even more than YouTube ads. So can you imagine कि Amazon पर ज़्यादा एडवर्टाइजर अवेलेबल है, Amazon पर लोग ज़्यादा एड्स बाय करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं देन YouTube। ये चीज़ भी आपको आज पता चली है कि Amazon का एड रेवेन्यू YouTube से ज़्यादा है। So Amazon की कामयाबी का क्या राज है? What makes it so successful and so big? बाकी जैसे कंपेटिटर्स हैं वो इस लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे जिस लेवल पे Amazon है? देखिए इसी कुछ वजूहात है, कुछ रीजन है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट, Amazon इज अ कंपनी दैट इज वेरी कस्टमर सेंट्रिक। ये हमेशा से कस्टमर्स की बात मानते हैं, हमेशा से कस्टमर्स के फीडबैक को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। अगर आपने कभी Amazon से कोई चीज़ कभी बाय की है तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। Amazon की कस्टमर सर्विसेज इस टाइम दुनिया की टॉप कस्टमर सर्विसेज में एक है, इफ नॉट द बेस्ट। Amazon हमेशा कस्टमर को प्रायोरिटी देता है। कुछ भी हो जाए वो कहता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर की बात मानी जाए। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, अगर आपको कोई चीज़ का इशू है, किसी पैकिंग का इशू है, वो ईजिली रिफंड दे देते हैं, ईजिली प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हैं। ये उनकी जो सबसे अहम बात है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, उनकी कस्टमर सर्विस है। और ऐसी कस्टमर सर्विस ना कोई मेरे ख्याल में फिजिकल बिजनेस देता है, ना कोई ऑनलाइन बिजनेस टाइम ऑफर कर रहा है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हुई और ट्राई की हुई है चीज़। सो जेफ बेजोस ने हमेशा से अपने इंटरव्यूज में भी, अपनी टीम पे भी जो डिस्कशन करता है, हमेशा उसकी बुक्स के अंदर भी उसने एक चीज़ पर बात की है कि बी कस्टमर ऑब्सेस्ड। कस्टमर के साथ आपको ऑब्सेशन होना चाहिए, कस्टमर के मसले हल करने, कस्टमर को अच्छी सर्विस दें, एंड थ्रू दिस यू कैन ऑलवेज बी एट द टॉप ऑफ द गेम। सेकंड जो Amazon की कामयाबी का राज है वो है डेटा एंड AI। Amazon ट्रैक्स एवरीथिंग। आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ सर्च करते हैं, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, जिस प्रोडक्ट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस पेज पर, किस जगह पर कितना टाइम स्पेंड करें, Amazon हर चीज़ को ट्रैक करता है। और उस ट्रैकिंग के थ्रू कस्टमाइज उसके एल्गोरिदम्स होते हैं, AI को यूज़ करता है वो, जिसके थ्रू आप Amazon वेबसाइट पे ज़्यादा अरसा रहते हैं और आप ज़्यादा बाइंग करते हैं। आपने कभी नोट किया कि आपको वही चीज़ एग्जैक्टली दिखती है जो आप खरीदना चाहते हैं? सो दिस इज बिकॉज Amazon ट्रैक्स एवरीथिंग। आपका डेटा AI के थ्रू कुछ एडवांस एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो कस्टमर को जाने नहीं कहीं देते हैं। तीसरी जो इसकी कामयाबी की रीजन है वो है स्केल एंड लॉजिस्टिक्स, जिसकी वजह से छोटे कंपीटिटर्स, छोटी कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, कंपनीज इस तक नहीं पहुंचते। देखिए Amazon का स्केल बहुत बड़ा है। Amazon अपने मैसिव स्केल को, मैसिव फंड्स को, मैसिव बजट को यूज़ करता है, उसको लेवरेज करता है। उनके पास अपनी ट्रक्स का फ्लीट है, उनके पास अपने कार्गो प्लेन्स हैं, उनके पास अपने ओशन वेसल्स हैं। इसकी वजह से Amazon चीज़ें क्विकली एग्जीक्यूट करता है, चीपर एग्जीक्यूट करता है और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करता है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंपेटिटर। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी डार्क साइड ऑफ Amazon के ऊपर बात करेंगे। देखिए Amazon isn't perfect, no company is perfect, no one is perfect. There are a few controversies behind such great success of Amazon, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले वर्कर ट्रीटमेंट।
कई वर्कर्स कहते हैं कि Amazon के अंदर काम करने का मतलब है कि यू आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर ऑल द टाइम. आपको काम बहुत तेजी से करना है, आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और आपको पर्सनली अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता व्हेन यू आर ऑन द वर्क. सो इससे ये होता है कि अक्सर जो उनके एम्प्लॉइज है वो कंप्लेन करते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है, कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग की जाती है, उनको हमेशा एक वर्कलोड दिया जाता है, उनसे ज़्यादा वर्कलोड दिया जाता है इनफैक्ट. और ये है कि कभी कभी वो इंजर भी होते हैं जब प्रोडक्ट्स उठा रहे होते हैं और उनको कई बार वॉशरूम या फूड ब्रेक भी नहीं दी जाती. जब काम का लोड ज़्यादा हो तो उन्होंने सिर्फ काम करना है तो उनकी ब्रेक भी काफ़ी तक रोकी जाती है, डिले कर दिया जाता है उसको. दूसरी उन पर तनकीद की जाती है वो ये है कि Amazon ने एक मोनोपोली क्रिएट कर ली, इनके पास मोनोपोली पावर है. देखिए Amazon के पास ह्यूज सेल्स है, उनके पास ह्यूज रिसोर्सेज हैं, उनके पास ह्यूज बजट्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, टीम है, मैंने आपको सारा बताया, उनकी फ्लीट्स हैं अपनी पूरी. लेकिन ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि इन्होंने इसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट कर लिया एंड इट हैज़ बिकम एन ई-कॉमर्स जायंट, इट हैज़ बिकम अ शॉपिंग जायंट. सो यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि कोई नई कंपनी, कोई नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये ऊपर ही नहीं आने देते हैं, ये उनको क्रश कर देते हैं, उनको या तो बाय आउट कर लेते हैं या तो उनको चलने नहीं देते हैं. सो Amazon ने एक मोनोपोली क्रिएट की हुई है. और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि Amazon पर अगर कोई छोटा बिजनेस का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, सो Amazon जो है सिमिलर प्रोडक्ट्स लॉन्च करके उनको अंडरकट कर देता है बिकॉज दे हैव ऑल द डेटा, और फिर अपने प्रोडक्ट्स को वो आगे दिखाना शुरू कर देता है. सो ये भी इन पर तनकीद की जाती है कि Amazon की जो मोनोपोली है उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए. और Amazon एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसकी वजह से छोटे प्लेयर्स को, छोटी कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान आता है. सो आप मुझे नीचे बताइएगा कि क्या Amazon ने वाकई मोनोपोली क्रिएट की है, क्या वाकई छोटे बिजनेसेस, छोटे प्लेटफॉर्म्स या छोटे सेलर्स इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वो नुकसान में है. सो Amazon का क्या फ्यूचर है, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर Amazon? देखिए इस टाइम Amazon जो है वो भरपूर अंदाज में AI और ऑटोमेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है. Amazon जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है AI के ऊपर, रिकमेंडेशंस के ऊपर, कैशलेस सर्विसेज के ऊपर, स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम्स के ऊपर. और इन द फ्यूचर हो सकता है कि उनके पास चेकआउट काउंटर्स की जरूरत भी ना हो, सारा कुछ स्मूथ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, सीमलेस हो जाएगा, विदाउट एनी ह्यूमन पर्सन, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. इस चीज पर वो फुल भरपूर अंदाज से काम कर रहे हैं. उसके अलावा फ्लाइंग ड्रोन्स के ऊपर काम किया जा रहा है कि आपको ड्रोन्स प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे. Amazon प्राइम एयर के अंदर पैकेज विल बी डिलीवर्ड टू यू बाय ड्रोन्स, आपको ड्रोन्स के थ्रू आपके पैकेज डिलीवर कर दिए जाएंगे और बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही हैसल फ्री तरीके से आपको चीजें डिलीवर कर दी जाएंगी. इस पर प्रोटोटाइप्स भी चल रहे हैं, कुछ जगहों पर एग्जीक्यूट भी की जा रही है और कुछ जगहों पर लार्ज स्केल के ऊपर ये जल्द आ जाएगी. सो ये लोग फ्लाइंग ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी तेजी से काम कर रहे हैं. उसके बाद डेटा इज द न्यू ऑयल. मैंने आपको बताया कि जो डेटा है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है. Amazon जो है वो एल्गोरिथम से हर चीज़ ट्रैक करता है और आपको हर चीज़ दिखाई जाती है, बताई जाती है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं. आप वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, कहीं और जाते भी नहीं और आप कुछ ना कुछ खरीद के जाते हैं Amazon से. सो वो डेटा को यूज़ करते हैं ताकि आप जो है यानी कि जो कस्टमर हैं वो उन पर बाउंड रहे और कहीं और ना जाए और कुछ खरीद के जाए उनसे. सो आप क्या सीख सकते हैं कि आप डेटा को इंटेलिजेंटली यूज़ करें, आप ट्रैक करें अपने कस्टमर्स को, आप देखें कि डेटा को आप कैसे लेवरेज कर सकते हैं बेटर डिसीजंस बनाने में. देन यू हैव टू डाइवर्सिफाई इन द फ्यूचर. आप Amazon सीखे कि वो एक जगह रुके नहीं है, वो डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ को बदलते जा रहे हैं. बुक शॉप से स्टार्ट किया उन्होंने, एज एन ऑनलाइन बुक स्टोर स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट की और नाउ दे हैव एवरीथिंग. दे हैव बिकम द एवरीथिंग स्टोर, जो कि जेफ बेजोस का विजन था 1994 में जब उसने Amazon शुरू की और आज वो AI के अंदर भी आ गए हैं. सो इस तरह आपने देखना है कि आपने अपने को लिमिट नहीं करना है जगह पे, आपने डाइवर्सिफाई करना है. जब आपने ग्रोथ अचीव की आप मूव ऑन करें, डाइवर्सिफाई करें और एवेन्यूज को एक्सप्लोर करें, कंपनी को बेस को एक्सपैंड करें. डोंट जस्ट स्टिक अराउंड टू जस्ट वन सिंगल प्लेस और वन सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस. उसके अलावा Amazon जो है वो हेल्थ केयर के अंदर भी आ रहे हैं, वो अपना फार्मेसी स्टार्ट कर रहे हैं, वो हेल्थ केयर के अंदर एग्रेसिवली आ रहे हैं, वर्चुअल डॉक्टर के विजिट्स भी कराए जाएंगे. उसके अलावा आप सोचें कि आप टूथपेस्ट ऑनलाइन ऑर्डर करें, आपको ऑनलाइन टूथपेस्ट मिल जाएगी आके और मेडिसिन भी मिल जाएंगी आपको. सो Amazon इज ऑल्सो कमिंग इनटू हेल्थ केयर एंड मेडिसिन. सो आप क्या फोरसी करते हैं कि अगले 10 साल में Amazon कहां पे होगा? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. सो ये थी Amazon की कहानी, लेकिन इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या की टेक अवेज हैं जिसको हम सीखें और हम अप्लाई करें? देखिए सबसे पहले हमें ये चीज जानना है कि द ग्रेटेस्ट आइडियाज ऑफन हैव हम्बल बिगिनिंग्स. जैसे 1994 में जेफ बेजोस ने अपने गैराज से Amazon शुरू की, इट वाज हम्बल बिगिनिंग और आज आप देख सकते हैं Amazon कहां पर चली गई है. दूसरा लेसन, बी पेशेंट विद प्रॉफिट. जब आप कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, आप स्टार्टअप एस्टैब्लिश करते हैं, तो आपने प्रॉफिट के लिए पेशेंट होना है. Amazon ने अपना प्रॉफिट 7 साल बाद कमाया था, उससे पहले वो री इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, उससे पहले अपनी जेब से लगाई जा रहे हैं, इन्वेस्टर से पैसा लगाई जा रहे हैं. 7 साल बाद वो प्रॉफिटेबल हुए थे. सो यू हैव टू बी पेशेंट विद प्रॉफिट. और आप जब कारोबार करते हैं तो आपको कुछ साल पेशेंस के साथ चलना पड़ता है. सो यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि जब आप बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, सो आपके अंदर सब्र और पेशेंस होना चाहिए. प्रॉफिट फौरन नहीं आ जाएगा, इट विल टेक
टेक टाइम, आपकी कंपनी को प्रॉफिटेबल होते हुए टाइम लगेगा। तीसरी चीज, यू हैव टू बिल्ड प्लेटफॉर्म्स इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स। देखें, आप जब प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं तो सारे यूजर्स को, सब लोगों को फायदा होता है। यू आर अल्टीमेटली गिविंग वैल्यू टू पीपल। व्हेन पीपल फाइंड वैल्यू इन योर प्लेटफॉर्म और योर सर्विस, सो पीपल अल्टीमेटली आपके पास लॉयल हो जाएंगे, दे विल नेवर गो एनीवेयर। सो Amazon ने क्या किया, उन्होंने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जहां पर सब लोग पैसा कमा सकते हैं, खाली वो नहीं बल्कि उसके अलावा हर सेलर पैसा कमा सकता है। सो उन्होंने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, मार्केट प्लेस बिल्ड की, जिससे सबको फायदा हुआ। विन विन सिचुएशन फॉर देम, फॉर द कस्टमर एंड फॉर द सेलर एज वेल। उसके बाद जो हम सीख सकते हैं वो है कि क्रिएट लॉयल्टी थ्रू वैल्यू। देखें, Amazon ने कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट की है। एक कस्टमर को उन्होंने अपने इकोसिस्टम में बाउंड कर दिया है। जो Amazon का कस्टमर है, जो प्राइम यूजर है, वो कहीं और नहीं जाता, वो कहीं और शॉपिंग भी नहीं करता। वो Amazon को एनुअल सब्सक्रिप्शन भी देगा, Amazon से फायदा भी उठाएगा और Amazon उसको बेतहाशा अच्छी सर्विसेज देगा, एफिशिएंसी देगा, फास्टर चीजें देगा और उसको अपने साथ लॉक रखेगा। सो आपने भी लॉयल्टी क्रिएट करनी, कस्टमर्स को वैल्यू देके। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपका जो कस्टमर है रिटर्निंग कस्टमर हो और वो और 10 कस्टमर्स आपके पास लाए। सो क्रिएट दैट वैल्यू, मेक द कस्टमर फील स्पेशल, ताकि वो आपके साथ लंबा अरसा चले और भी लोगों को आपके साथ लाए। आपका जो आइडिया है, दैट कुड बी नेक्स्ट, इवन यू कुड बी नेक्स्ट। देखिए, जेफ बेजोस जो है, ही वाज नाइदर द रिचेस्ट पर्सन, ही वाज नाइदर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ही वाज नाइदर द स्मार्टेस्ट पर्सन, लेकिन उसने एग्जीक्यूट किया, उसने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर उसको रियलिटी बनाया। अगर आपके पास भी एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, सो उसको काइंडली एग्जीक्यूट करें, खाली उसको अपने ज़हन में रखें, डोंट जस्ट स्लीप ओवर इट, उसको रियलिटी बना एग्जीक्यूट करें, टेक एक्शन। सो द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर ड्रीम इज एक्शन। सो स्टार्ट बिल्डिंग। सो आई होप आपने Amazon की केस स्टडी से कुछ जाना, कुछ सीखा, कुछ इंस्पिरेशन ली होगी। और अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल है, कोई भी फीडबैक है, सो आप नीचे मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें वो।